So once again, good afternoon, friends. We are into this lecture of the regarding the durability, distress, cracks, and the non-destructive test in the concrete. In the durability, we will be discussing to the next part, which is called as the efflorescence. Okay, it is bit difficult to pronounce or to get the spelling. EFFLORESCENCE बिल्कुल सिंपल इसका प्रोनाउंसिएशन क्यों है ना हमने वी शुड लर्न वेरी सिंपल प्रोनाउंसिएशन दैट इज द एफ्लोरसेंस. ठीक है, बोल के देखिए दो चार बार अपने हिसाब से. अब ये एफ्लोरसेंस हमने शुरू में डिस्कस किया है, बहुत बार हमने वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एफ्लोरसेंस सिर्फ दूसरे नाम से, लेकिन उस टाइम मैंने बोला था आपको कि एफ्लोरसेंस क्या है. फिर से डिस्कस करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है ये कंक्रीट के ड्यूरेबिलिटी और कंक्रीट के ओवरऑल लाइफ के ऊपर में डिपेंड करता है. तो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दिस फिनोमिना अगेन in view of the all these photographs I have attached. We know that due to some problem or other, maybe the bad workmanship, maybe improper material, that is the cement and the aggregate, water is same everywhere. Okay, एग्रीगेट में अभी फिर से वेल ग्रेडेड एग्रीगेट नहीं है, ऐसा बहुत सारा है. वर्कमैनशिप में वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा है, ओवर वाइब्रेशन, सेंटरिंग या फॉर्म वर्क में दरारें है, क्रैक्स है, उसके कारण स्लरी निकल गई वाइब्रेट करने के बाद, है ना. तो ड्यू टू ऑल दीज न्यूमरस रीजंस, improper curing, the concrete will have the concrete will be permeable. Permeable means there are many accesses, many roads, many approaches for the water to pass through the concrete. ठीक है. This permeability will be given to the concrete by the cracks or by the voids into the concrete. So what will happen as this concrete is having leakage, that is the water percolates through it. We have seen water is a very good solvent, means numerous materials, numerous chemicals dissolves into the water. And we have been discussing again and again that this cement which is used into the concrete is made up of calcium oxide and silicon oxide, and again the other materials are there, Al2O3, Ap2O3, etc., etc. But this calcium oxide or the lime, it is used about 60 to 70%. Silicon oxide is about 20 to 30%. And these are again ground to a very fine powder. You all know the production of the cement. And then they are burnt and converted to the cement, box compound, which has got the cementing property. But unfortunately, some calcium oxide or the lime, if the proportioning is somehow or other, the proper quantity of the lime and the silicon oxide is needed. If lime is bit more, then that lime remains unconverted to the cement and it remains into the calcium oxide form into the cement. And this lime or calcium oxide reacts with the water which we use into the concrete for preparation of the concrete, and this calcium oxide with water gets converted into the calcium hydroxide. And you all know that this calcium hydroxide is a useless material.
I am using this word since so many lectures. It is a useless material. This has got three very bad properties. That after it hardens, it sets, it is unsound, its volume increases, producing the cracks into the concrete. Secondly, the hardened calcium hydroxide is very brittle in nature, और ब्रिटल रहने के कारण ये बहुत जल्दी टूटता फूटता भी है, कंक्रीट जैसा हार्ड नहीं रहता, स्ट्रेंथ नहीं रहती। और तीसरी जो हमारे अभी इस हिसाब से एफ्लोरेसेंस के हिसाब से इसकी प्रॉपर्टी है, दो तो है बैड प्रॉपर्टी, इट डिसॉल्व्स इन वाटर, ये पानी में डिसॉल्व होता है। और जैसे अब ये पानी कहां से आ गया कंक्रीट में, फिर से परमिएबल कंक्रीट रहने के कारण, बरसात का पानी है या एखादा कंक्रीट का स्ट्रक्चर पानी के कांटेक्ट में है, जैसे एखादा समंदर में है, मरीन स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, एखादा स्ट्रक्चर नदी में है, नदी का ब्रिज है, एखादा डैम है, हम कंस्ट्रक्ट करते हैं बहुत बड़े बड़े कंक्रीट के डैम जो पानी को रोकते हैं, है ना। इसलिए कंक्रीट का कितना महत्व है धीरे धीरे आप समझते आइए। 6 सेमी यूनिट में अपन आ रहे हैं अभी, तो हमें तो अच्छा इंजीनियर होना है, हमें तो अच्छा कंक्रीट एक्सपर्ट होना है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व्स इन वाटर, and the water has got always tendency to percolate through the concrete voids, to the concrete cracks, to flow. So while flowing, this dissolved calcium hydroxide also flows with the water, and there is a space left into the concrete which the calcium hydroxide has left while it has moved with the water. Along with calcium hydroxide, there are other solids और salts are also there. यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो एक है ही, लेकिन बाकी भी बहुत सारे कुछ कंक्रीट में इम्प्यूरिटीज रही, कुछ सॉल्ट्स रहे, इसलिए हम बोलते क्ले या सॉइल भी कंक्रीट में गलती से भी जाना नहीं चाहिए। माती जिसको बोलते हैं मराठी में, माती सॉइल। एग्रीगेट साफ रहना चाहिए, से वो कोर्स या फाइन कोई भी रहे। सिल्ट परसेंटेज इसलिए हमने पढ़ा है यूनिट नंबर 2 में, 5%, 3% से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। This also dissolves in water and finds its path through the voids of the concrete. And after it comes out of the concrete, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या कहीं क्लोराइड्स है, सोडियम क्लोराइड्स एक्सेट्रा, this calcium hydroxide or the sodium chlorides or maybe silt or the clay, it dissolves in water, it flows with the water through the permeable concrete and it reaches out of the surface of the concrete. concrete का जो बाहरी सरफेस है, जो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है, वो सरफेस को ये आ जाता है पानी, और पानी के साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम क्लोराइड NaCl या सम क्ले और द सिल्ट, माती। अब क्या होता है कि ये बाहर आने के बाद में पानी जो है, पानी की प्रॉपर्टी ऐसी है कि व्हेन द आउटर टेम्परेचर और आउटर एटमॉस्फेयर हैज गॉट मोर हीट देन द कंक्रीट सरफेस, दिस वाटर गेट्स इवेपोरेटेड। ये पानी का इवेपोरेशन हो जाता है, सूख जाता है। और सूखने के बाद में क्या होता है कि ये जो बचा हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एक तो इन द मीन टाइम दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। आप धीरे धीरे ये केमिकल रिएक्शन अब आपकी मग होना चाहिए, पार्ट हो जाना चाहिए कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O फॉर्म्स CaOH twice. This CaOH twice dissolves, comes out of the surface of the concrete. And in the meantime it may react with carbon dioxide to convert into calcium carbonate, या calcium hydroxide में भी रह सकता है ये वैसे। और जब इसके सरफेस का पानी सूख जाता है तो ये बाहर में ऐसा सफेद धब्बा बताता है,
This is called as the leaching of concrete. This is also called as the efflorescence. Okay. So this is called as, two words are there any time in your life, because this is a common word used in the world of concrete technology. So all of you must be conversant with this. This is called as the leaching of concrete, or it is also called as the efflorescence. या ऐसा दिखता है आपके, मुझे लगता है आपके मोबाइल में या आपके स्लाइड में दिख रहा है आपके, ये कंक्रीट के बाहर ऐसे कॉटन के जैसे स्पंज रहते हैं, वो कॉटन के स्पंज जैसे ऐसे बाहर जमा हो जाते। These whitish deposits on the surface of the concrete resulting from leaching of carbon hydroxides, carbon dioxides, carbon hydroxide, and calcium carbonate, and subsequent carbonation and evaporation are called as efflorescence. Okay, so this efflorescence is not good, or this phenomena of occurring efflorescence into the concrete is not good from the health of concrete, क्योंकि efflorescence हो गया है, इसका मतलब है कंक्रीट के अंदर परमिएबल कंक्रीट है और इसमें से वाइड्स हो गई है। We have seen the main cause, that is the unconverted calcium oxide reacts with water, calcium hydroxide dissolves in water, finds the path into the voids and the cracks into the concrete, comes out of the surface, may react with carbon dioxide, converts to calcium carbonate, and after evaporation of the water it forms the whitish patches or the whitish sponge type material over the surface of the concrete. That is one of the cause. Another cause, as I have been discussing during our this lecture, that some salts are there. Sometimes in urgency we use the seashore sand, समंदर के किनारे की जो रेती रहती है या उसमें जो जाड़ी जाड़ी एग्रीगेट, स्फेरिकल एग्रीगेट रहते हैं, वो हम यूज करते हैं। और क्योंकि समंदर में सॉल्ट है तो ये सी शोर एग्रीगेट में भी सॉल्ट रहता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, अनवॉश्ड, इसलिए यूज वर्ड क्या है, अनवॉश्ड सी शोर एग्रीगेट। तो हमने क्या, यदि यूज करना है तो क्या करना चाहिए, उसको वॉश करना चाहिए ताकि उसमें का सॉल्ट निकल जाए। तो ये सॉल्ट यदि रह गया कंक्रीट में, तो ये सॉल्ट फिर से पानी में डिजोल्व होता है। एक तो ये सॉल्ट रीइंफोर्समेंट को करोड़ करने के लिए भी डेंजरस है। कोई भी क्लोराइड ऑलवेज अफेक्ट्स टू द रीइंफोर्समेंट। So this salt is not only dangerous from the point of view of corrosion of the reinforcement into the concrete, but also it is one of the cause of the efflorescence or leaching of concrete. The another chemicals which results for or which are responsible for the efflorescence or the leaching is the gypsum and a calcium sulfate. ये कैल्शियम सल्फेट हम कब क्यों यूज करते हैं कंक्रीट में? Why we use the gypsum? Because to increase the setting time of the concrete, that is for the retardation purpose, है ना। जिप्सम क्यों यूज करते हैं, कैल्शियम सल्फेट, कंक्रीट का या सीमेंट का सेटिंग का रेट कम करने के लिए। आपको याद होगा ना कि सीमेंट जब बनाते हैं हम, और जब वो क्लिंकर फॉर्म होते हैं सबसे आखिरी में, तो वो क्लिंकर को क्रश करते हैं, फाइन करते हैं, ग्राउंड करते हैं, और फिर उसमें जिप्सम भी डालते हैं 2 से 5% बाय वेट ऑफ द सीमेंट टू इंक्रीज द सेटिंग टाइम। क्योंकि नहीं तो क्या है कि हमारे जो C3S है और C2S है और C3A, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इनको टेंडेंसी जल्दी सेटिंग की है, फ्लैश सेटिंग बोलते हैं। अभी हम 6th यूनिट में आ गए हैं,
तो अभी कम से कम आज तो 11 ही लोग हैं, बहुत अच्छा नहीं लगता मुझे इतने कम बच्चों को पढ़ा, लेकिन जितने 11 है वो भी मैं जेम ही समझता हूँ। कम से कम इतने लोगों के ध्यान में तो आया होगा कि what are the box compound and their properties। तो वो फ्लैश सेटिंग की प्रॉपर्टी 3 सीमेंट के इंग्रेडिएंट कंपोनेंट को है, वो है C3S, C2S एंड C3A। तो वो सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए यानी रिटार्डेशन के लिए हम जिप्सम डालते हैं। लेकिन ये यदि जिप्सम या कोई अल्कलाइन एग्रीगेट में वो रिएक्टिव एग्रीगेट करके बोलते हैं ना, इसलिए एग्रीगेट हरदम इनर्ट रहना चाहिए। केमिकल सीमेंट में जो अल्कली रहती है उससे उसकी रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो उसके कारण भी some alkalis are produced which dissolves in water, and also gypsum has the tendency, calcium sulfate with water again, to form the COH twice and again percolates and the results into the efflorescence. So therefore many kinds of the salts has been detected in the samples of the efflorescence। यानी ये जो एफ्लोरेसेंस हुआ जो मटेरियल है, इसका डीकम्पोजिशन करने के बाद में इसमें बहुत सारे सॉल्ट मिलते हैं। तो इसलिए ये एफ्लोरेसेंस हमने इन चीजों से हम यानी कैल्शियम सल्फेट का जितनी रिक्वायरमेंट है उतने ही 2 से 3-4% तक ही कैल्शियम सल्फेट यूज करेंगे बाय वेट ऑफ द सीमेंट। एज फार एज पॉसिबल वी विल मेक द कंक्रीट इम्परमिएबल। सबसे इंपॉर्टेंट कैल्शियम ऑक्साइड भी हमारे पास में वो अनसाउंडनेस टेस्ट करके है, उससे हम कैल्शियम ऑक्साइड कितना है, अनसाउंडनेस कितना है, वो भी हमने देखा है। 10 mm से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, 0.8% बाय वॉल्यूम इंक्रीज ये नहीं रहना चाहिए। आप याद करते जाइए सब लेक्चर से, यदि पहले से ये करते। So the efflorescence, in addition to above chemical conditions, the type of the formwork, in addition to the degree of compaction and water cement ratio, also plays an important role into the efflorescence। यानी फॉर्मवर्क जो है वो वाटर प्रूफ रहना चाहिए, वाटर टाइट रहना चाहिए। फॉर्मवर्क में कोई दरारें नहीं रहना चाहिए, क्रैक नहीं रहना चाहिए, नहीं तो स्लरी निकल जाएगी और कंक्रीट परमिएबल होगा। डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन या वाइब्रेशन जो करते हैं, ये जितना इसेंशियल है उतना ही करना है। ओवर कॉम्पैक्शन से फिर से ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट और सेग्रीगेशन ऑफ द कंक्रीट टेक्स प्लेस which results into formation of the cracks and the voids into the concrete। और वाटर सीमेंट रेशियो तो अभी आप डॉक्टर हो गए होंगे, वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में मैंने आपको ज्यादा अभी बोलने की जरूरत नहीं है ना। वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा, पानी ज्यादा, फॉर्मेशन ऑफ द क्रैक्स, फॉर्मेशन ऑफ द voids not more than 38% or not more than water cement ratio 0.38। that is 38% of the water by weight of the cement is to be used into the concrete। है ना, बार बार बोल रहा हूं मैं, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। वाटर सीमेंट रेशियो 38% बार बार मैं बोलता हूं, इसका मतलब क्या है ना। हम सीमेंट यूज करते हैं कंक्रीट में और पानी भी यूज करते हैं, तो पानी कितना डालना है, सीमेंट का 38%। यानी 100 किलो यदि सीमेंट डालते हैं तो उसका 38% यानी 38 किलोग्राम और 38 लीटर्स। और उसको ही यदि हम वाटर सीमेंट रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो वाटर कितना है 38 किलोग्राम, सीमेंट कितना है 100 किलोग्राम, तो वाटर सीमेंट रेशियो 0.38 हो गया है ना। ये सब कोरिलेशन अभी आपके ध्यान में आना चाहिए। देयरफॉर द ऑकरेंस ऑफ एफ्लोरेसेंस is greater when cool and wet weather में, जब कंक्रीट जो है वो ठंडे तापमान में, ठंडी हवा में, जब कंक्रीट
एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, आर्द्रता बहुत ज्यादा है, वेट वेदर, एंड फॉलोड बाय द डॉट ड्राई हॉट स्पेल। हमारे यहाँ जैसा होता है कि ठंड काले में ठंडी रहती है, उसके बाद में एकदम धूप काला हॉट स्पेल चालू होता है। बारिश रहती है, जैसे ही रेनी सीजन खत्म हो जाता है, कूल होता है, फिर से हॉट स्पेल आता है। तो concrete is exposed to three types of the atmosphere. That is the cooling, lower temperature to almost 7-8 degrees Celsius. Humidity about 100% of the humidity, more than 80% हमारे यहाँ विंटर रेनी सीजन में रहती है, और टेम्परेचर तो 48-47 डिग्री तक जाता है। तो उसके कारण एफ्लोरेसेंस होने के और बहुत ज्यादा चांसेस है। Can also be caused with the use of the unwashed seashore aggregate, हमने देखा। Transport of the salts from the ground through the porous concrete to a drying surface is another cause of the efflorescence, है ना। हमने डिस्कशन किया है कि बहुत सारे हमारे कंक्रीट के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो है, जैसे बेसमेंट में रहता है, ग्राउंड फ्लोर के नीचे का फ्लोर जो है उसको बेसमेंट करके बोलते हैं, जमीन के नीचे का तळमजला मराठी में बोलते हैं, तळघर। या फाउंडेशन में कंक्रीट इज कम्स इन कांटेक्ट विद द सॉइल, है ना। फाउंडेशन में, बेसमेंट फ्लोर में, क्योंकि वो जमीन के नीचे रहता है, तो वो इट कम्स इन कांटेक्ट विद द सॉइल, एंड इफ दैट सॉइल कैरीज द सॉल्ट, वो सॉइल में यदि सॉल्ट है, नमक है, तो वो पोरस कंक्रीट में से परकोलेट होगा, और उसके कारण एफ्लोरेसेंस होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, इन एडिशन टू द अबव कॉजेस। सो एफ्लोरेसेंस जो है, ये वैसे तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये व्हाइट, और ये आपको आपने यदि अपनी आंखें खुली रखी और आपने आते जाते कोई भी आपके आजू बाजू प्लास्टर चालू है, कंक्रीटिंग चालू है, तो ये बहुत जगह आपको एफ्लोरेसेंस दिखेगा। और कहीं गलती से ज्यादा एफ्लोरेसेंस दिखा, लीचिंग दिखा, तो समझ लेना ये कंक्रीट इम्परमिएबल नहीं है, इसमें परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा है। डॉक्टर जैसा आप अभी एनालाइज कर सकते हैं कंक्रीट को देखने के बाद, कंक्रीट की हेल्थ कैसी है ना। हार्डन्ड कंक्रीट, सेट कंक्रीट, अब धीरे धीरे आप कंक्रीट को देखने के बाद में एक आधा कंक्रीट मेंबर, तो आप बोल सकते हैं कि इसमें whether this concrete is good or bad by seeing the efflorescence, by seeing the leaching, by seeing the cracks। या आप ऐसे टच करके भी उसको यदि स्क्रैच किया ऐसे ही नाखून से थोड़ा सा हल्का, और यदि वो निकलता है, इसका मतलब इसका क्यूरिंग बराबर नहीं कहीं तो भी। सो देयरफॉर दो the efflorescence to some extent is not that much harmful, but extensive leaching of the calcium hydroxide will increase the porosity or the permeability, and then slowly this cycle will continue। permeable होगा concrete, and the concrete becomes progressively weaker and more prone to chemical attack। Crystallization of other salts also causes the efflorescence, another cause of the efflorescence। Now, how to prevent the efflorescence or the leaching of concrete? First and the foremost is workmanship। अभी तक के आपके ध्यान में आ गया होगा वर्कमैनशिप में क्या क्या इंक्लूड है ना। वाटर टाइट फॉर्मवर्क बनाने से तो सफिशिएंट क्यूरिंग तक के, उसमें अभी वाटर टाइट फॉर्मवर्क, वे बैचिंग में फिर से वेल ग्रेडेड एग्रीगेट वगैरह सब आ गया, प्रॉपर मिक्सिंग, प्रॉपर ट्रांसपोर्टिंग, प्रॉपर प्लेसिंग, प्रॉपर कॉम्पैक्शन, finishing the top surface, and then curing at least for the 21 days or 28 days, और स्टीम क्यूरिंग, गर्म पानी से या वेपर से कर रहे हैं तो आप कम पीरियड के लिए क्यूरिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है टेम्परेचर इज वन ऑफ द रीजन टू इंक्रीज द रेट ऑफ द गेन ऑफ स्ट्रेंथ।
है ना, हमने पढ़ा है वो. So the first one is to minimize the C3A content in the cement. यानी other than the workmanship, the other chemical control we can do is to reduce the C3A. That is to use the sulfate resisting Portland cement. C3A reduction करना है तो हमें सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट यूज करना पड़ेगा टू मिनिमाइज द लीचिंग और द एफ्लोरेसेंस कंक्रीट को. द सेकंड अप्रोच इज टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कंट्रोल कैसा कर सकते हैं? अगेन कंट्रोलिंग द कैल्शियम ऑक्साइड इनटू द सीमेंट, that is in hydrated cement plant by the use of the this is very third you can say. The second approach is to reduce the calcium hydroxide by reducing the or by controlling the CaO or the line. And the third and very important is the use of the pozzolana material. Okay, because we have learned like pozzolanas like the blast furnace slag or the fly ash or the rice husk ash, various pozzolanas you have no silica fume. क्योंकि ये पोजोलोना क्या करते हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द वाटर आफ्टर द इनिशियल हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट, एंड देन it forms the CSH gel, and the CSH gel is a binding material. It fills the voids which were remained after initial hydration of the cement, and also it fills the cracks into the concrete also. So use of the pozzolanas by blending and mixing the cement with all these pozzolanic material is one of the measures you should take. So we should take three measures. The first is by using the sulfate resisting cement. Second is by using the pozzolanas, fly ash, etc. by reducing the C3A. And the first one, as I have emphasized, is by doing the very best workmanship. Now we are moving with knowledge of the durability, the causes, permeability, and then the efflorescence, one of the cause of the permeability. We'll move on to the next part of this unit. That is the distress in concrete structure, its causes and causes of deterioration of concrete. है ना, यानी अभी ऐसा समझा गया है कि अभी आपको मैक्सिमम कंक्रीट टेक्नोलॉजी समझ में आ गई है, लेकिन फिर भी क्या होता है, ड्यू टू वेरियस रीजंस, मे बी some reasons are known, some reasons are unknown, the concrete gets damaged. कंक्रीट में क्रैक्स आते हैं, वाइड्स रहते हैं, स्पॉलिंग ऑफ कंक्रीट करके मैंने आपको बताया कि बराबर कवर नहीं दिया तो रीइंफोर्समेंट के ऊपर का कंक्रीट का जो पपड़ा है वो निकल जाता है और रीइंफोर्समेंट खुला हो जाता है एटमॉस्फेयर. दैट इज कॉल्ड एज द डैमेज टू द कंक्रीट टेक्स प्लेस. दिस डैमेज टू द कंक्रीट may be in various forms: formation of the voids, formation of the cracks, spalling of the concrete, efflorescence. This results into the decrease of the strength of the concrete and also the durability of the concrete. This damage is called as the distress or the destruction in concrete. ठीक है, डिस्ट्रेस का मतलब क्या है, मैंने पहले आपको बताया था कि when the concrete is now not in a condition to bear the stress produced into the concrete, then if
the stress is more than the strength, then कहाँ से दिखेगा वो? Formation of the cracks, etc. That is called as the distress or destruction. So though we say that the concrete should be durable, but the concrete suffer damage or the distress. ठीक है? The concrete suffer damage or distress during its service life due to the various reasons. We will discuss one by one. And you know maximum of them. All of them you know. Why the distress takes place. But first and the foremost, I think everybody of you must have understood the meaning of the distress. Distress, destruction, or the damage to the concrete. The reason may be the quality of the concrete, or the reason may be structural. क्वालिटी ऑफ कंक्रीट में फिर से क्या आ गया? क्वालिटी ऑफ मटेरियल, वर्कमैनशिप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड द स्ट्रक्चरल कंडीशंस में एखादे बार स्ट्रक्चर को जब डिजाइन करते हैं तो डिजाइन करते वक्त डिजाइनर से कुछ लोड्स कंसीडर करना रह गए, कुछ सम प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग डिजाइन, एंड द कंक्रीट मेंबर्स आर अंडर सेक्शन, यानी जैसा सेक्शन चाहिए उससे कम सेक्शन का मेंबर यदि किया तो लोड ज्यादा होने के कारण स्ट्रेस होगा, कंक्रीट में स्ट्रेस होगा, और उससे स्ट्रेंथ से ज्यादा है स्ट्रेस तो कंक्रीट डी स्ट्रेस होगा, क्रैक्स आएगी उसमें. तो दीज आर द टू रिजल्ट्स, टू causes. So the various causes that has been discussed are, the first is the varying conditions under which it is produced at various locations. Means this comes again the under the workmanship. यानी कंक्रीट बनाते वक्त वो जो भी सराउंडिंग कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, और बाद में क्वालिटी कंट्रोल कंडीशंस ऑन द साइट, हाउ मच केयर यू आर टेकिंग एट द साइट. So this may be one of the cause for the distress into the concrete. So varying conditions under which that concrete is produced at various locations, that is during production or during service conditions, यानी concrete production stage में या concrete हो जाने के बाद में, जैसे वो बीम है, कॉलम कुछ भी है, उसका फिर अभी उसको वापर यूज में लाना चालू हो जाने के बाद में उसको सर्विस कंडीशन बोलेंगे, उस पे आने वाले लोड. थर्ड में भी स्ट्रक्चरल कॉजेस, अभी मैंने जैसे बताया, इंक्लूड एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड, एंड द लास्ट और द नेक्स्ट इज द एनवायरमेंटल लोड्स एक्सीडिंग द डिजाइन स्टिपुलेशंस, और एखादे बार एक्सीडेंट्स एंड द सब्सिडेंस अंडर एस्टिमेशन. एखादे बार हो सकता है एखादे ब्रिज के ऊपर, एखादे रोड के ऊपर, या कहीं भी एखादे स्ट्रक्चर में एक्सीडेंट हो जाने के कारण वो स्ट्रक्चर का डैमेज हो सकता है. दिस इज मे बी वन ऑफ द कॉज ऑफ द डिस्ट्रेस. वर्कमैनशिप अगेन, पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, एरर इन डिजाइन एंड डिटेलिंग. रीइंफोर्समेंट के बारे में है ये कि रीइंफोर्समेंट जो दिया जाता है कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, तो वो रीइंफोर्समेंट कम दिया गया है डिजाइन करते वक्त गलती से. और डिटेलिंग यानी वहां पे लेइंग जो करते हैं रीइंफोर्समेंट, उसमें बिछाते हैं कंक्रीट करने के पहले, उसको डिटेलिंग एंड द लेइंग बोलते हैं. तो वहां कहीं तो भी वर्कमैनशिप में गड़बड़ हो गई तो उसके कारण. एंड द कंस्ट्रक्शन ओवरलोड्स, यानी कंक्रीट फ्रेश है, सेट होने का है, और उसके ऊपर कुछ लोड्स आ गए तो उसके कारण ये डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रेस हो सकता है. बाकी जो अदर रीजंस है वो ड्राइंग श्रिंकेज है. श्रिंकेज के बारे में हमने पढ़ा है, उसमें कंक्रीट जब ड्राई होते हुए श्रिंक होता है तो अनइवन श्रिंकेज के कारण क्रैक्स आती है. थर्मल स्ट्रेस, अगेन हीट ऑफ हाइड्रेशन, या समर बाहर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है उसके कारण कंक्रीट में थर्मल यानी हीट के कारण जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं, अनइवन हीट इनटू द कंक्रीट produces the stresses and results into formation of the cracks
वेदरिंग, आप अभी जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसमें आपको वेदरिंग मालूम है. Concrete is exposed to three types of the weather: the rainy season, summer, and the winter. All this causes into the shrinkage or expansion of the concrete. विंटर में श्रिंक होता है ठंडी के कारण. बाकी तो रीजन है श्रिंकेज के, बट इन एडिशन टू दैट वेदरिंग इज वन ऑफ द रीजन. एंड धूप काले में टेम्परेचर बढ़ने के कारण थोड़ा एक्सपांड भी होता है कॉन्क्रीट. सो वेदरिंग इज वन ऑफ द कॉज फॉर द डिस्ट्रेस. Chemical reactions. Sometimes the concrete comes in contact with the chemicals like the sulfates, etc., alkalis, and corrosion of the reinforcement. We have been discussing this corrosion of reinforcement from time to time. What are the causes of corrosion of reinforcement? You must be on your own now, should be able to write and explain. The plastic concrete may also suffer damage due to plastic shrinkage and settlement cracking. कंक्रीट जब गीला रहता है, प्लास्टिक रहता है, तो प्लास्टिक श्रिंकेज के कारण तो उसमें डैमेज या क्रैक्स आ सकते हैं, है ना. प्लास्टिक श्रिंकेज क्यों होता है? क्योंकि कंक्रीट का सरफेस जो है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, एनवायरनमेंट आजू बाजू का, और उसका यदि तापमान ज्यादा है एटमॉस्फेयर का, एनवायरनमेंट का, तो नेचुरली कंक्रीट के सरफेस में या सरफेस का जो कंक्रीट है वहां का पानी इवेपोरेट होता है, और उसके कारण वह सरफेस में श्रिंकेज होते हैं, और वो उसको प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स करके बोलते हैं. अनइवन श्रिंकेज के कारण क्रैक्स होते हैं. और दूसरा, जब कंक्रीट गीला रहता है और यदि फॉर्मवर्क और सेंटरिंग हमने अच्छे से डिजाइन नहीं किया, अच्छे से कंस्ट्रक्ट नहीं किया, तो वो सेटल हो सकता है नीचे में, तो उसके कारण कंक्रीट में क्रैक्स आते हैं. बहुत बार होता है ऐसा, क्योंकि कंक्रीट में पानी रहता है, और हमारी वर्कमैनशिप यदि अच्छे क्वालिटी की नहीं रही, यानी हमने काम अच्छे से फॉर्मवर्क का नहीं कर लिया. फॉर्मवर्क यानी जिसमें कंक्रीट ढालते हैं वो मेंबर, दो चीजें हैं, फॉर्मवर्क एंड सेंटरिंग. सेंटरिंग यानी वो फॉर्मवर्क को जो सपोर्ट करता है उसको सेंटरिंग करके बोलते हैं. फॉर्म जो देता है, शेप जो देता है, उसको फॉर्मवर्क. और स्टेजिंग या सेंटरिंग एक वर्ड है, दो वर्ड है, स्टेजिंग या सेंटरिंग. विच गिव्स सपोर्ट्स टू द फॉर्मवर्क इज कॉल्ड एज द स्टेजिंग और द सेंटरिंग. तो ये फॉर्मवर्क में यदि क्रैक्स रहे, दरारें रही, तो कंक्रीट में का पानी स्लरी के साथ में बाहर निकलता है, और वो पानी है वो जो नीचे टपकता है जमीन पे. और ये सेंटरिंग और स्टेजिंग काय के ऊपर रहता है? सॉइल के ऊपर रहता है. और वो सॉइल गीली हो गई तो उसका सेटलमेंट होता है, नीचे बैठती है वो सॉइल, और उसके कारण फॉर सेंटरिंग भी नीचे जाता है थोड़ा सा, और सेंटरिंग नीचे जाता है तो इसलिए फॉर्म वर्क भी नीचे जाता है, और फॉर्म वर्क नीचे जाता है, कंक्रीट गीला रहता है, तो कंक्रीट में क्रैक्स आती है, जिसको सेटलमेंट क्रैक करके बोलते हैं. इसलिए आप क्या कीजिए कि एखादा स्ट्रक्चर चालू है कहीं कंक्रीटिंग वगैरह, तो वहां पे वो, अब आपके ध्यान में फॉर्मवर्क, सेंटरिंग या स्टेजिंग, ये तीनों में का फर्क आ गया होगा ध्यान में, या आपने कहीं तो भी आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या कोई तो भी सब्जेक्ट होता मटेरियल्स, तो उसमें आपको ये पढ़ाया गया होगा. तो उसके कारण सेटलमेंट होते हैं. मैंने तो एक एक्सीडेंट देखा है कि वो सेंटरिंग सेटल हो गया, फॉर्म वर्क नीचे गिर गया, एंड दैट एक्सीडेंट वाज अ फेटल एक्सीडेंट. सम लेबर्स लॉस्ट देयर लाइफ. ऐसा होता है बहुत बार. तो इसलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए वर्कमैनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. द इंजीनियर मस्ट लुक आफ्टर ऑल दीज थिंग्स. So these are the reasons for the causes of the distress. We will recapitulate it again. The causes of distress or damage or destruction into the concrete. The structural causes. Externally applied load. जो भी हम उसके ऊपर लोड आने वाला है, वो यदि डिजाइन लोड से ज्यादा है तो नक्की उसमें क्रैक्स आएगा. Environmental loads like the temperature,
like the rainy season and the summer, etc. This is the environmental load. Accidents, these are beyond our control. एखादे ब्रिज के ऊपर, एखादे रोड के ऊपर, एखादे बिल्डिंग में कोई एक्सीडेंट हो गया, ब्लास्ट हो गया, आग लग गई, that results into the distress or damage to the structure and the concrete. And subsidence, etc. All these are the, again, subsidence is again you can say the things which are beyond our control, unforeseen items. So error in design and detailing, poor construction practices, one of the very important aspect, poor construction practices, bad workmanship, construction overloads, drying shrinkage, thermal stresses, chemical reactions, weathering and corrosion. These are some of the important causes of the distress. In addition to the distress in hardened concrete, the plastic concrete may also suffer damage due to the plastic shrinkage, settlement cracking, early removal of the formwork. यानी कंक्रीट पूरा हार्ड या सेट होने का ही है और उसका यदि फॉर्मवर्क हटाया, उसका सेंटरिंग हटाया, तो वो कंक्रीट में क्रैक आ सकते हैं. पूरा कड़क बनने का ही है, पूरा हार्ड होने का है, सेट होने का है. इम्प्रॉपर डिजाइन ऑफ फॉर्मवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर्मवर्क हम ऐसा ही नहीं लगाते, बस कुछ पार्टी या प्लेटें लग दी, सपोर्ट कर दिया हो, ऐसा नहीं. उसका डिजाइन करना पड़ता है. उतना वो जितना उसके में लोहा डालने वाले हैं, जितना कंक्रीट डालने वाले हैं, वो कंक्रीट का लोड, लोहे का लोड, और उसको वो फॉर्मवर्क और सेंटरिंग झेल सकता है कि नहीं. ऐसे मैंने भी एक्सीडेंट देखे हैं कि फॉर्मवर्क का बराबर डिजाइन नहीं किया, तो वो ड्यूरिंग कंक्रीटिंग वर्क द फॉर्मवर्क हैज कोलैप्स्ड, अगेन रिजल्टेड इनटू सर्टेन फैटेलिटी. एंड लॉस तो बहुत होता ही है, यानी जो कंक्रीट मटेरियल है उसका तो लॉस है, लेकिन जानमाल को भी हानि हो सकती है और होती है. आप कहीं पेपर में पढ़ते होंगे बहुत बार ऐसे ही इंसिडेंसेस. सो ऑल दीज आर द थिंग्स विच आर नीडेड टू बी कंसिडर्ड. अभी बहुत इंपॉर्टेंट एक हम आगे में पढ़ते हुए आज रुक जाते हैं, कल यहां से फिर से चालू करेंगे. मैंने आपको बताया, ये फोटोग्राफ आपको दिख रहा होगा कि यदि फॉर्मवर्क को हमने बराबर वाटर टाइट नहीं बनाया, इफ देयर आर सर्टन प्लेसेस द क्रैक्स और सर्टन होल्स इनटू द फॉर्मवर्क, the cement and water paste will come out, will leave that concrete and will result into formation of such surface which exposes the voids externally into the concrete and the aggregate without cement and water paste, without the cement paste. After hardening, आफ्टर रिमूविंग द फॉर्म वर्क, उसको ही स्ट्रिपिंग ऑफ फॉर्म बोलते हैं. आफ्टर रिमूवल ऑफ द फॉर्म वर्क, ए नंबर ऑफ द कंक्रीट सरफेस डिफेक्ट्स, यानी ये जो कंक्रीट सरफेस है, ये कंक्रीट सरफेस में बहुत सारे डिफेक्ट्स दिखते हैं, जैसे कि बल्जेस, यानी कंक्रीट ऐसा थोड़ा बाहर निकला हुआ, या कुछ बलून टाइप या ऐसे छोटे उसके ऊपर दिखते हैं, बल्जेस बोलते हैं. ridges, certain forms of the cracks, या ऐसे छेद छेद दिखते हैं जिसको हनी कोम्बिंग करके बोलते हैं. हनी कोम्बिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कंक्रीट में कभी हनी कोम्बिंग यानी क्या? हनी कोम्बिंग इज नथिंग बट द exposed concrete surface which looks like which looks without the cement paste and only the aggregates are exposed. Why it is called as the honeycombing? Because जो मधुमक्खी का जो कोम्ब रहता है, पोड़ा बोलते हैं उसको, मधुमक्खी का रहने का जो जगह रहती है, वो इट लुक्स लाइक दिस.
and therefore it is called as the honeycombing. फॉर्मवर्क को हम बोल्ट लगाते हैं बहुत बार फिक्स करने के लिए. वो बोल्ट निकालने के बाद में उसको सीमेंट और सैंड के अच्छे इससे मॉर्टर से भर देना चाहिए जैसे यहाँ दिख रहा है. लेकिन वो बोल्ट होल्स ऐसे ही रख दिए तो वो भी दैट आर आल्सो वन ऑफ द कॉजेस फॉर द डिटीरियरेशन और इंक्रीजिंग द परमिएबिलिटी और द डिस्ट्रेस. सो देयरफॉर ऑल दिस हनीकॉम्बिंग मुझे लगता है आपके ध्यान में आ गया. बल्जेस, रीजेस, ब्लोल्ट होल्स कैन बी अवॉइडेड by providing a watertight and rigid formwork. फॉर्मवर्क जो है वो वाटर टाइट ही रहना चाहिए और बिल्कुल पक्का रहना चाहिए, रिजिड रहना चाहिए, नहीं तो फिर हनीकॉम्बिंग होगा. इन एडिशन टू दीज इफेक्ट्स, ब्लो होल्स यानी ऐसे फिर से मैंने बताया वैसे जैसे कोई वो कंक्रीट के ऊपर में छेद बना है उसको ब्लो होल बोलते हैं. बहुत ज्यादा डीप नहीं रहता, हार्डली आधा सेंटीमीटर रहता है on the surface of the concrete. Blow holes develop during concreting operation due to improper design of the formwork formed onto the surface by trapped air and the water bubbles against the face of the formwork. कंक्रीट और फॉर्मवर्क इसके बीच में एयर बबल ट्रैप हो जाते हैं, अटक जाते हैं और कंक्रीट सोट होने के बाद में वो एयर बबल के जगह पे ब्लो होल्स दिखते हैं, होल्स दिखते हैं, HOLE होल्स. और वो ब्लो यानी जैसे कोई फूंका है उस जैसे दिखते हैं, इसलिए ब्लो होल्स दिखते हैं. दिस कैन बी रिड्यूस्ड इफ द फॉर्म फेस इज स्लाइटली absorbent and adequate compaction is provided. Must be filled with 1:1 or 1:2 cement and mortar. ये जो भी ब्लो होल है उसको वैसे ही नहीं रखना, 1 part of the cement and 1 part of the sand, यानी एक घमेला सीमेंट 8 घमेला सैंड या एक घमेला सीमेंट 2 घमेला सैंड 1:2, ऐसा मॉर्टर बनाना, ऐसा मसाला बना के वो ब्लो होल को फिल कर देना, पैक कर देना. अब हनीकॉम्बिंग को क्यों हनीकॉम्बिंग बोलते हैं? ये हनीकॉम्ब ऐसा दिखता है, मधुमक्खी का जो पोला जो रहता है वो ऐसा दिखता है. और हनीकॉम्बिंग कंक्रीट में हुआ तो ये कंक्रीट ऐसा दिखता है, लेफ्ट साइड में बताया. हनीकॉम्बिंग कंसिस्ट ऑफ द ग्रुप्स ऑफ द इंटरकनेक्टेड डीप वॉइड्स नॉर्मली इंडिकेट inadequate compaction. हनीकॉम्बिंग क्यों होता है? inadequate compaction और loss of the grout यानी cement and the water paste through the joints in the formwork or between formwork and previously casted concrete. So here we will take the break. With honeycombing we will start in our next lecture. What are the precautions to be taken, etc.